Okay, let us start the lecture. So I will share the screen. Okay, today we will discuss about the next part of the combinational circuit. In last classes, we have to discuss about the various type of combinational circuits, such as the arithmetic circuits, which includes the half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, and afterward we will discuss about the multiplexer, demultiplexer, and last one is the decoder. So there are the various type of combinational circuit. We have to discuss the designing and the working of the multiplexer, demultiplexer, decoder, and the half adder and full adder simultaneously. Okay, today we will discuss the next part of the combinational circuit, that is the sequential circuit. There are the different types of sequential circuits and the comparison of the combinational circuit we will discuss in this chapter. This is the lecture. Okay. So first one section is related to the flip-flop, that is a part of the sequential circuit. So let us start the study of the flip-flop. So first one point is the in combinational circuit, present output is depend upon only the present input. It is not depend upon previous value input. That is, does not consist any type of memory element. Okay. Means in case of combinational circuit, there the present input is depend upon the present output is depend upon the present input. Okay, and it does not have any past values or any type of memory element. So as we discussed in previous lecture, there is compare between the combinational and the sequential circuit. So specifically in combinational circuit, there is no one any type of memory element. But in case of sequential circuit, it consists the memory element as compared to combinational circuit. That means in the sequential circuit, present output is depend upon present input as well as previous input or previous values or past values. That means it will introduce the memory element that will be consist the previous value or past values. Okay. Next point is the in sequential circuit, flip-flop is using as a memory element. So the most important element in case of sequential circuit, that is the flip-flop. Flip-flop is working as a memory element. Okay. Next is the flip-flop is a 1-bit memory element. Flip-flop is a 1-bit memory element. That means it will be stored the 1-bit data. It will store the 1-bit memory, 1-bit data that is related to previous values. Okay. Next, the flip-flop is also known as the latch because it holds or latch contents of previous level of signals. Contents will be changed at each clock pulse. That इसका meaning क्या है? Flip-flop is working as a latch or hold. That means the flip-flop latch करके रखेगा, hold करके रखेगा previous level of signal. कंटेंट्स ऑफ प्रीवियस लेवल सिग्नल. दैट मीन द प्रीवियस जो वैल्यूज हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम तक ये क्या स्टोर करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, लैच करके रखेगा. ओके. एंड द कंटेंट्स, नेक्स्ट कंटेंट विल बी चेंज व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाई. व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाई द कंटेंट विल बी चेंज. सो दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जैसे रेक्टेंगुलर क्लॉक पल्स है तो इस क्लॉक पल्स के ड्यूरेशन तक वो कंटेंट्स को क्या स्टोर करके रखेगा. जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो नेक्स्ट वाले कंटेंट को स्टोर कर रखेगा. So ultimately flip-flop just like a memory element that will store, that will be latch or hold the previous level of signals, previous contents of previous level signal or information. Okay. अब इसमें देखना फ्लिप फ्लॉप आर एज ट्रिगर्ड. एज ट्रिगर्ड दैट मीन्स द जैसे इस क्लॉक पल्स में एक तो जैसे ये लेवल है और एक ये एज है. पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है
दूसरा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ओके, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड दैट मीन्स जैसे ही क्लॉक पल्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है उस एज के रेस्पेक्टिव अपन उसको ट्रिगर करेंगे फ्लिप फ्लॉप। और ट्रिगर का दैट मीन्स द स्टेट्स एंड द कंटेंट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल बी चेंज। ट्रिगर और इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जैसे अपन ट्रिगर पल्स देंगे तो फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, एक्टिव मोड में आएगा, और एक्टिव मोड में क्या करेगा, वो नेक्स्ट लेवल के वैल्यूज या इंफॉर्मेशन या कंटेंट को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ओके, so flip flop are the age triggered. Okay, next ppt will represent the type of flip flop. The type of flip flop, that is there are the 5 type of flip flop. First one is the SR flip flop, that is known as the set reset flip flop. Second one is the D flip flop. D is the delay flip flop. Next is the JK flip flop. Next, fourth one is the T flip flop. T is related to toggle flip flop. ओके, नेक्स्ट इज द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, एक एक करके अपन इसका डिस्कशन करेंगे लेक्चर में। सो फर्स्टली डिस्कशन द एसआर फ्लिप फ्लॉप और सेट रिसॉर्ट फ्लिप फ्लॉप। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप से पहले अपन इसकी कैटेगरीज को डिस्कशन करें। सो देयर आर द बेसिक 2 कैटेगरीज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। फर्स्ट वन इज द एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप, सेकंड वन इज द सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब ये फ्लिप फ्लॉप की पहले अपन ने स्टडी करी कि फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग क्या है, स्टोरिंग एलिमेंट है, 1 बिट को स्टोर करेगा, मेमोरी एलिमेंट है, सीक्वेंशियल सर्किट में काम में आता है, ये सबसे वो। नेक्स्ट अपन स्टडी करी कि टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कितने टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप अपन काम में ले सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अब इसमें भी दोनों 2 टाइप की कैटेगरी हैं फ्लिप फ्लॉप में। फर्स्ट वन है सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप एंड सेकंड वन इज द सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। In case of asynchronous flip-flop, clock pulse is not applied, but in case of synchronous flip-flop, clock pulse is applied. अब अपन अभी तक जो अपन ने इस क्लास में अपन देख रहे हैं इस लेक्चर में कि क्लॉक पल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। इन केस ऑफ दिस वन, क्लॉक पल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा सा नेट का इश्यू था, तो इस वजह से थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया। फिर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। Okay, so in case of synchronous flip-flop, the important term is the clock pulse. So the clock pulse basically responsible to trigger the flip-flop. Trigger the flip-flop, that means the उसके activation mode को एक्टिव करना है, डीएक्टिव करना है, उससे रिलेटेड रहेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स के रेस्पेक्टिव अपन फ्लिप फ्लॉप को सेट कंडीशन में लाएंगे, रीसेट कंडीशन में लाएंगे, एक्टिव कंडीशन में लाएंगे, इनएक्टिव कंडीशन में क्रिएट करेंगे। सो द क्लॉक पल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप। So in case of asynchronous flip-flop, clock pulse is not applied, whereas in case of synchronous flip-flop, clock pulse is applied. So there is the basic differentiation between the asynchronous and the synchronous flip-flop, where the clock pulse is applied or not applied. Okay, so let us start the study about the first one flip-flop, that is the SR flip-flop. SR flip-flop, that is the set reset flip-flop. Okay,
as we know that the working of bistable multivibrator where the two transistor 1 and the transistor 2 and the transistor 2 are in on or off mode simultaneously. अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है फ्लिप फ्लॉप वाले, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की अपन स्टडी कर रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि इट इज बेसिकली ओरिजिनेट बाय यूजिंग द मल्टी वाइब्रेटर। और मल्टी वाइब्रेटर कौन सा है इसमें? बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एक्चुअली मल्टी वाइब्रेटर क्या है, थोड़ा मल्टी वाइब्रेटर के बारे में बताऊं मैं। मल्टी वाइब्रेटर दैट मीन्स जैसे इसके नाम से इंडिकेट है मल्टीपल वाइब्रेशन। मल्टीपल वाइब्रेशन दैट मीन्स इट क्रिएट द रेगुलर or continuous square waveform. It will create the continuous square waveform and it is a combination of the two transistor. It is a combination of the two transistor. अब जैसा अगर नेक्स्ट अपन पीपीटी में इसको देखें मल्टी वाइब्रेटर को, हाँ याद है। So basically the bistable multi vibrator is simply combination of the two transistor 1 and the transistor 2, okay, are connected back to back direction and the important configuration is that कि इस ट्रांजिस्टर 1 का जो आउटपुट है वो किसमें कनेक्टेड है? ट्रांजिस्टर 2 के इनपुट में या बेस में, ओके। और ट्रांजिस्टर 2 का जो आउटपुट है वो एक्चुअली किसके कनेक्टेड है? ट्रांजिस्टर 1 के बेस में, ओके। तो ये एक्चुअली कौन सा ट्विस्टेड फॉर्म है? ट्विस्टेड फॉर्म दैट मीन्स द एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में है और दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट में, ओके। तो ट्विस्टेड फॉर्म में है। ट्विस्टेड फॉर्म में ओके, ये एक्चुअली क्या क्रिएट कर रहे हैं? मल्टीपल वाइब्रेशन। मल्टीपल वाइब्रेशन क्या है? दैट इज क्रिएटिंग द रेगुलर और कंटिन्यूअस स्क्वायर वेव फॉर्म, ओके। नेक्स्ट इसके ऑपरेशन की स्टडी करें अपन। इसके ऑपरेशन को देखें तो फर्स्ट क्या है? इनिशियली ट्रांजिस्टर 1 क्या है? ऑन कंडीशन में है। ट्रांजिस्टर 2 क्या है? ऑफ कंडीशन में, ठीक है। ट्रांजिस्टर 1 जैसे यहाँ देखो इस डायग्राम में, ट्रांजिस्टर 1 ऑन कंडीशन में है, that means it is working as a short circuit, ठीक है। शॉर्ट सर्किट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं ट्रांजिस्टर के केस में? इट इज इन सैचुरेशन मोड। ट्रांजिस्टर 1 दैट मींस द सैचुरेशन मोड, ठीक है। ट्रांजिस्टर 2 क्या है? ऑफ मोड में। ऑफ मोड का मतलब क्या है? ये कट ऑफ मोड में, ठीक है। ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन मोड में है दैट मींस ऑन कंडीशन है। ऑन कंडीशन दैट इज इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट, क्लियर। ट्रांजिस्टर 2 ऑफ कंडीशन में दैट मींस इट इज इन कट ऑफ मोड एंड इट इज वर्किंग एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। ट्रांजिस्टर 1 और ऑन कंडीशन में है, सैचुरेशन मोड में है, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, तो इसका आउटपुट पे क्या आएगा? लो। तो क्यू बार इक्वल्स टू 0, क्यू बार इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारी की सारी करंट कहां? इधर फ्लो कर जाएगी। इसके आउटपुट पर पोटेंशियल क्या रहेगा? 0, ठीक है। ट्रांजिस्टर 2 किस मोड में है? कट ऑफ मोड में है ना, ऑफ कंडीशन में। ऑफ मतलब ओपन सर्किट की फॉर्म में। ओपन सर्किट है तो सारा का सारा वीसीसी किधर आ गया? इस वाले आरसी के रेस्पेक्टिव। आरसी के रेस्पेक्टिव दैट इज रिलेटेड टू क्यू। तो क्यू क्या हो गया? हाई। तो क्यू पे पोटेंशियल कितना आएगा? प्लस वीसीसी। प्लस वीसी का मतलब क्या रहेगा? हाई। हाई इक्वल्स टू 1, सो क्यू इक्वल्स टू 1। अब कंक्लूजन क्या निकला इसमें? कंक्लूजन वाला पार्ट क्या है? अगर ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है, सैचुरेशन मोड में है, शॉर्ट सर्किट है, तो उसका आउटपुट क्या रहेगा? लो, 0। अगर कोई ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में है, कट ऑफ मोड में है, ओपन सर्किट की तरह वर्क कर रहा है, दैट मींस उसके आउटपुट क्या आएगा? हाई, क्लियर। ऑन है आउटपुट लो रहेगा, ऑफ है आउटपुट हाई रहेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इनिशियली क्या मान लिया अपन ने कि ट्रांजिस्टर 1 तो ऑन कंडीशन में जिसका आउटपुट 0 है, ट्रांजिस्टर 2 ऑफ कंडीशन में जिसका आउटपुट क्या? हाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफ ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड एट द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 2 then transistor 2 is start to going in on state and transistor 1 will be transmitted into off state। अब इसका क्या मीनिंग है कि अब अगर ट्रांजिस्टर 1 ऑन है, ट्रांजिस्टर 2 ऑफ है, बाय द वे अगर इनकी स्टेट अपन चेंज करना चाहें, क्योंकि होता क्या है कि जैसे स्क्वायर वेवफॉर्म में देखते हैं ना, ये स्क्वायर वेवफॉर्म है, इस वाले स्क्वायर वेवफॉर्म में या स्क्वायर पल्स में क्या है? एक बार क्या ये हाई है, दूसरी बार क्या ये लो आएगा, फिर क्या जाएगा? हाई जाएगा, फिर लो जाएगा, फिर हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरह से चलता जाएगा। मतलब कोई ट्रांजिस्टर को अपन इससे कोरिलेट करना चाहें तो क्या होगा? ट्रांजिस्टर एक बार ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, इस तरह साइमल्टेनियसली वर्क करेगा। तो इसका मीनिंग यहाँ से डिफाइन करा हुआ है कि इफ ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड। अब इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ है? ट्रांजिस्टर 2 ऑफ है।
ये सेकंड वाला ऑफ है, तो सेकंड वाले के बेस पे जो ऑफ में है, अगर उसके बेस पे अपन ट्रिगर पल्स अप्लाई करें तो जो ऑफ वाली कंडीशन में है वो किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऑन कंडीशन में। तो ये चीज यहाँ पे बताइए, इफ ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड एट द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 2 देन ट्रांजिस्टर 2 इज स्टार्ट गोइंग इन ऑन स्टेट, मतलब जो ऑफ स्टेट में चल रहा है उसके बेस पर ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे तो ट्रांजिस्टर किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऑफ से किस कंडीशन में जाना चालू हो जाएगा, ऑन कंडीशन में। ठीक है, अब ये जैसे ही ऑन जाएगा तो क्यू पे क्या आ जाएगा, वैल्यू 0। ये 0 वाली वैल्यू किस पे जा रही है, ट्रांजिस्टर 1 के बेस पे। अब ट्रांजिस्टर 1 के बेस पे जाएगी तो ये जो ऑन बना हुआ था पहले वो किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में। आई बात समझ में? तो जो ऑन वाला था वो ऑफ में जाना स्टार्ट हो जाएगा, जो ऑफ वाला था वो ऑन वाली कंडीशन में। पर एट ए टाइम एक ऑन रहेगा और दूसरा ऑफ रहेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर का बेसिक ही यही है कि दो ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन लेना है, पर उनकी कंडीशन कैसे रहेगी, एक ऑन रहेगा तो दूसरा ऑफ रहेगा, और पहला ऑफ है तो दूसरा ऑन रहेगा। तो इस तरह से एट ए टाइम एक ऑन रहेगा और दूसरा ऑफ कंडीशन में रहेगा। इज इट क्लियर? तो इस केस में अगर ट्रांजिस्टर 2 और ऑफ कंडीशन में है और अगर ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे तो ट्रांजिस्टर 2 तो किस में स्टार्ट हो जाएगा, ऑन कंडीशन में जाना। ट्रांजिस्टर 2 तो किस में चालू हो जाएगा, ऑन कंडीशन में जाना, और ट्रांजिस्टर 1 किस में आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में। तो जो पहले ऑन ऑफ वाली कंडीशन थी वो ऑफ और ऑन कंडीशन में, मतलब उसकी रिवर्सिबल कंडीशन आ गई। ठीक है, तो क्यू बार पहले जो 0 था वो क्यू बार क्या हो गया, 1। जो पहले Q1 था वो अब क्या हो गया, Q0। इज इट क्लियर? ठीक है, now to control the bit Q stored in the latch, additionally two input S and R is connected। अब SR फ्लिप फ्लॉप और इसके रेस्पेक्टिव बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के रेस्पेक्टिव डिजाइन करना है तो उसके लिए कैसे अपन डिजाइन कर सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर 1 का बेस है उसको कनेक्ट कर दो सेट से, सेट टर्मिनल से। ठीक है, ट्रांजिस्टर 2 है उसके बेस को किससे कनेक्ट कर दो, रीसेट टर्मिनल से। क्लियर है? सो सेट टर्मिनल को इससे अपन ने कनेक्ट कर रखा है, जैसे सेट टर्मिनल को इससे कनेक्ट करा, सेट टर्मिनल को कनेक्ट करा ट्रांजिस्टर 1 के बेस से, रीसेट टर्मिनल को करा ट्रांजिस्टर 2 से। अब इसके केस एक एक करके अपन स्टडी करते हैं। तो केस फर्स्ट अपन ने लिया सेट इक्वल्स टू 1 रीसेट इक्वल्स टू 0। कंडीशन कौन सी रहेगी, ये सेट स्टेट, तो सेट पे अपन 1 कर रहे हैं, सेट को एक्टिव रख रहे हैं, तो कंडीशन कौन सी रहेगी, सेट स्टेट। अब अपन देख रहे हैं कि सेट स्टेट में अपन 1 कर रहे हैं तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर 1 है वो किस मोड में रहेगा, ऑन वाली केस में। तो सेट तो अपन ने 1 करा, 1 का मतलब हाई करा अपन ने। अगर ट्रांजिस्टर 1 के बेस को अपन हाई मोड में लाएं तो ट्रांजिस्टर 1 किस में जाएगा, ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन में जाते क्यू बार क्या रहेगा, 0। ये क्यू बार 0 रहेगा। ठीक है, दूसरा वाला ट्रांजिस्टर है वो किस में रहेगा, ये अगर ट्रांजिस्टर 1 ऑन में है तो ट्रांजिस्टर 2 किस में रहेगा, ऑफ में। ऑफ में रहेगा तो क्यू क्या रहेगा, हाई, तो क्यू इक्वल्स टू 1। सो इन केस ऑफ सेट इक्वल्स टू 1, सेट को अगर अपन हाई रख रहे हैं तो क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 1। सेट की वैल्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, हाई आएगी, क्यू इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ? दूसरा केस लिया अपन ने सेट इक्वल्स टू 0 एंड रीसेट इक्वल्स टू 1। इस केस में अपन ने क्या रखा, रीसेट को 1 रखा है। रीसेट को 1 रखने के केस में क्या आएगा, अगर अपन रीसेट को 1 रखें तो ट्रांजिस्टर 2 किस में रहेगा, ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन में क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और क्यू बार की वैल्यू क्या रहेगी, 1। सो क्यू की वैल्यू 0 एंड क्यू बार इक्वल्स टू 1, है ना। जब रीसेट को अपन 1 करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे तो ट्रांजिस्टर 2 किस में जाएगा, ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन में दैट मींस शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, रीसेट 0 है तो ये किसमें, कट ऑफ मोड में। कट ऑफ मोड में तो क्यू बार क्या, हाई रहेगा, क्यू बार इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, जब अपन सेट को 1 रख रहे हैं, सेट को हाई रख रहे हैं तो क्यू हाई है, क्यू इक्वल टू 1 है। और जब अपन रीसेट को 1 रख रहे हैं, रीसेट को हाई कर रहे हैं तो क्यू बार 1 रखना है। ठीक है, और क्यू बार क्या एक्चुअली क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना। क्यू 0 है तो क्यू बार 1 आएगा, क्यू 1 है तो क्यू बार 0 आएगा। बार का मतलब अपन कॉम्प्लीमेंट ही समझते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब क्यू है और दूसरा क्यू पे बार है तो क्यू बार दैट मींस द इट्स कॉम्प्लीमेंशन फॉर्म। क्यू 0 है तो क्यू बार 1, क्यू 1 है तो क्यू बार 0। इज इट क्लियर? ओके, इस केस को अपन क्या कहते हैं, रीसेट कंडीशन।
फर्स्ट वाली कंडीशन कौन थी? सेट स्टेट या सेट कंडीशन थी। दूसरी वाली कंडीशन क्या है? रीसेट कंडीशन। इज इट क्लियर? ओके। थर्ड वन इज द एस इक्वल्स टू 0 आर इक्वल्स टू 0। अगर अपन दोनों ही केस में सेट को भी 0 कर दें, रीसेट को भी 0 कर दें, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? इनएक्टिव मोड, है ना। अब इनएक्टिव का मोड का मतलब क्या रहेगा कि जो उनकी प्रीवियस स्टेट है, फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर 1 ऑन में था, ट्रांजिस्टर 2 ऑफ में था, सेट रीसेट पे दोनों पे अपन ने 0 0 दे दी, तो 0 से तो उनकी स्टेट चेंज होगी नहीं, तो प्रीवियस स्टेट थी वो एज इट इज बनी रहेगी, यानी ट्रांजिस्टर 1 ऑन में ही बना रहेगा, ट्रांजिस्टर 2 ऑफ में बना रहेगा। दैट मींस इट इज नोन एज द इनएक्टिव और नो चेंज कंडीशन, यानी जो उनकी प्रीवियस कंडीशन थी उसी कंडीशन में ट्रांजिस्टर क्या दोनों बने रहेंगे। ट्रांजिस्टर की स्टेट कब चेंज होती है? जब अपन सेट या रीसेट दोनों में से किसी एक पे क्या है 1 अप्लाई कर दें, है ना। सेट पे 1 अप्लाई कर दें या रीसेट पे अप्लाई 1 कर दें, तब उनकी स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दोनों पे 0 0 है तो वो कौन सी कंडीशन है? नो चेंज कंडीशन और इनएक्टिव कंडीशन। ओके। लास्ट वन कंडीशन एस इक्वल्स टू 1 एंड रीसेट इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग क्या है कि रेस कंडीशन है। इट इज नोन एज द रेस अराउंड कंडीशन इन विच both transistor will try to get saturation or on condition। इसका मीनिंग क्या है? अगर अपन सेट पे भी 1 दे दें, रीसेट पे भी 1 कर दें, तो इसमें क्या होगा? सेट पे 1 है तो वो ट्रांजिस्टर 1 को ऑन कंडीशन में लाने के ट्राई करेगा, रीसेट पे 1 करेंगे तो वो ट्रांजिस्टर 2 को ऑन की कंडीशन में लाने का कोई ट्राई करेगा। तो दोनों में क्या चलती रहेगी? रेस चलती रहेगी कि सेट ट्रांजिस्टर 1 को ऑन करेगा कि रीसेट इस ट्रांजिस्टर 1 को। सो ये रेस वाली कंडीशन कब आएगी? जब दोनों पे अपन 1 1 अप्लाई करते हैं। क्लियर हुई बात? तो दोनों पे अगर 1 1 अप्लाई करेंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर ट्राई करेंगे कि वो फर्स्ट में अगर वो पहले सैचुरेशन मोड में है या ऑन कंडीशन में है, या दूसरा ट्राई करेगा कि वो पहले ऑन या सैचुरेशन कंडीशन में है। इज इट क्लियर? सो दैट इज नोन एज द रेस अराउंड कंडीशन। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं दोनों चारों केसेस को। फर्स्ट अपन ने केस लिया जिसमें अपन ने सेट पे 1 रखा, एस पे 1 रखा, एस फॉर सेट। सेट पे 1 का तो कौन सी स्टेट आई? सेट स्टेट आई। इस केस में क्यू की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। क्यू बार की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्लियर? दूसरे वाले केस में क्या मैंने रीसेट पे 1 करा, रीसेट को हाई करा, रीसेट को हाई करने पे क्या हुआ? क्यू बार पे 1 आया और क्यू पे क्या हो गया? 0। क्लियर हुई बात? भाई तीसरा केस क्या है? जब मैंने सेट और रीसेट दोनों टर्मिनल पे 0 0 कर दिया, दोनों टर्मिनल पे 0 0 करने पर क्या बनेगा? वो इनएक्टिव कंडीशन और नो चेंज कंडीशन, मतलब जो है एज इट इज स्थिति, एज इट इज कंडीशन में रहेगा, उसके न तो सेट वाली आएगी न रीसेट वाली आएगी। जो उसकी प्रीवियस स्टेट बनी हुई है वो स्टेट पे वो स्टेबल बना रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर? फोर्थ जो स्टेट है, फोर्थ स्टेट क्या है? जब सेट और रीसेट दोनों पे 1 1 दे रहे हैं, मतलब सेट रीसेट दोनों पे 1 1 दे दें, तो उस केस में क्या है? दोनों ट्रांजिस्टर में क्या चालू हो जाएगी? रेस चालू हो जाएगी। दोनों केस में क्या है? ट्रांजिस्टर 1 और 2 में दोनों में रेस हो जाएगी कि पहले कौन ऑन कंडीशन में आएगा। ट्रांजिस्टर 1 भी ऑन कंडीशन में आने की ट्राई करेगा, ट्रांजिस्टर 2 भी उसमें ऑन कंडीशन में आने की ट्राई करेगा, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगी? रेस वाली कंडीशन। सो व्हेन द सेट और रीसेट दोनों टर्मिनल पर अगर अपन 1 1 दे देंगे तो एक्चुअली कौन सी कंडीशन कहलाएगी? रेस कंडीशन और रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में एसआर फ्लिप फ्लॉप के अपन लॉजिक डायग्राम और ट्रूथ टेबल का डिस्कशन करेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट को आज के लेक्चर में कोई डाउट आ रहा हो, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप मेन यूनिट है इस डिजिटल सिस्टम डिजाइन जो सब्जेक्ट है, इसकी ये मेन यूनिट है फ्लिप फ्लॉप और सीक्वेंसर सर्किट। तो इसको मैं बहुत ही धीरे धीरे और केयरफुली आपको पढ़ाऊंगा, है ना, और बहुत ही पेशेंसफुली इसको सुनना है, समझना है। वो कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे डिस्कशन करना है। अभी आज के लेक्चर में कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो। हाँ, नील कुमावत। यस सर। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है क्लियर? मतलब अभी ये बताओ, लेक्चर में कोई इश्यू हो तो पूछो मुझसे, लेक्चर में कोई डाउट हो। नो सर, नो सर, अभी तो नहीं है सर। तो ठीक है, अभी मैं जैसे ही लेक्चर खत्म होगा इसके बाद जो पीपीटी है सीक्वेंसर सर्किट वाली, जो मैंने अभी आज पीपीटी पढ़ा रहा हूँ ना, इन पीपीटी को गूगल क्लासरूम पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है? यस सर, यस सर, ओके तो सर। पीपीटी की स्टडी करना बेटा। आज का लेक्चर जो मैंने लिया है इसको केयरफुली सुनना, है ना। मैं इसको कॉलेज के यूट्यूब यस सर। पे अपलोड कर दूंगा और इसको धीरे धीरे यस पढ़ते हुए जाना है, समझते हुए जाना है। और आई होप तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली, वो बुक्स मैंने बताई हुई थी जो। यस सर।
चलो ठीक है ना, तो उसमें से भी स्टडी करते रहना, और जो भी कोई डाउट हो तो वो मुझसे आप डिस्कशन करना है ना। कोई भी डाउट्स आता है तो Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके ओके बेटा।